Looking forward to working for big MNCs like Apple? Let's talk about एक particular country जो known है as the Silicon Valley of Europe. Yes, Ireland. एक emerging nation with plenty of job opportunities for students जो actually planning कर रहे हैं to do their masters or study abroad. Usually, students के mind में एक doubt होता है जब भी वो plan करते हैं to choose the correct destination for themselves अगर वो सोच रहे हैं बाहर पढ़ने का. This is something they've always heard about countries like UK, USA, Canada, Australia, etc. Usually जब हम इन countries को देखते हैं, हर साल lakhs of students जाते हैं इन places में तो find great universities, part-time job opportunities और eventually future में full-time jobs. But अब क्योंकि इन countries में जाने वाला students का crowd बहुत ज्यादा हो गया है, job employment opportunities दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है. इसलिए आयरलैंड एक इमर्जिंग ऑप्शन बन रहा है और इन कंट्रीज की जगह ले रहा है. चलो आयरलैंड के बारे में डेप्थ में बात करते हैं और समझते हैं कैसे ये तुम्हारे लिए भी एक राइट डेस्टिनेशन हो सकता है और कैसे ये तुम्हारी मदद कर सकता है. इन बिल्डिंग योर फ्यूचर देयर, सबसे पहले आयरलैंड इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप, जो नाम से ही सजेस्ट करता है कि ये करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर्स होल्ड करता है इन द वर्ल्ड. आज के टाइम में आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बहुत लो कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करती है और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना पैसा बचाना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर्स उस कंट्री में ओपन कर रहे हैं. तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, ऐसी बड़ी एमएनसीज अपने हेडक्वार्टर्स वहां ओपन कर रही है और इसे जो नंबर ऑफ पीपल चाहिए उनको काम करने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाता है. Hence, choosing Ireland as a country to actually pursue your courses, चाहे वो data analytics, business analytics, management या कोई भी XYZ course हो, can actually prove to be really useful and helpful for you in grabbing a better future opportunity for yourself. Now, talking about the entire criteria of Ireland, ये उतना high easy है जितना किसी और country का. All you have to do is choose the university for yourself with the desired course जो तुम्हें पढ़ना है and apply in those universities online. Once तुम्हें offer letter receive हो जाए, deposit to the university and then start your visa process. जैसे दूसरी countries में होता है, वैसे हाई आयरलैंड में भी basic documents required होते हैं for your visa process, which include your caste letter, confirmation of acceptance for studies, your TB test report, 28 days matured funds in your bank account, and your passport. After that, along with the UK, Ireland is the only other country जो students को 1 year का masters offer करता है, focusing more on practical knowledge जो students को मिलती है, ताकि उन्हें better career opportunities मिल सके. Better exposure and opportunity मिलती है. And it makes you skilled labor. So, 1 year का masters plus 2 years का post-study work visa, and finding yourself a part-time job in Ireland is as easy as getting yourself food when you're hungry, to be honest. जब तुम आयरलैंड में opportunities के लिए देखते हो, there are a lot of industries जो students जैसे तुम्हारे लिए wait कर रही है, जो तुम्हें देखेंगी तुम्हारे studies करते हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए और उसके साथ पार्ट टाइम काम करते हुए. अगर तुम अपने आप को इस पर्टिकुलर काम में प्रूव करते हो, यू कैन ऑल्सो आस्क कर सकते हो तो मेक यू अ फुल टाइम एम्प्लॉय. तुमने अपने 1 year मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी. तुम्हें एडिशनल एक्सटेंशन मिल सकता है 3 more years का तो स्टे इन दैट कंट्री. इसके बाद तुम अपना PR फाइल कर सकते हो इन आयरलैंड. हाँ, within 5 years तुम अपना यूरोपियन PR ले सकते हो और उसके साथ तुम बन सकते हो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एवरी नेशन जो यूरोप में फॉल करता है. Doesn't it sound really interesting and easy? So, yes, इतना easy है. अगर तुम सच में स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो, definitely give Ireland a thought.
अब लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हाँ, आयरलैंड तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है जब लिविंग एक्सपेंसेस की बात आती है, लेकिन ये स्टिल यूके और यूएसए से चीपर है और किसी भी दूसरी कंट्री से भी। और अगर तुम यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस की बात करें, तो इवन द ग्रेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ आयरलैंड, जैसे नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, इन फैक्ट these universities also help you with a very good amount of scholarships, so they charge you lower tuition fees while also providing financial support. जब तुम आयरलैंड के सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, इंश्योर करो कि तुम अपना एकोमोडेशन टाइम पा बुक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें आसानी से एक अच्छा रेंटेड प्रॉपर्टी ढूंढने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो जब तुम्हें यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाए, तब तुम्हें अपनी एकोमोडेशन हंटिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लेट हो गए तो काफी मुश्किल हो सकता है। तुम्हें शायद यूनिवर्सिटी के पास अपने लिए एक सूटेबल जगह नहीं मिल सके या फिर यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन भी नहीं मिले। दूसरी छोटी सी समस्या, जो मुझे वैसे ज्यादा बड़ी नहीं लगती, ये है कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन लोगों का आयरिश एक्सेंट होता है, जो कभी कभी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसमें अच्छे हो, तो तुम एक्चुअली इसे अडेप्ट कर सकते हो और अपने आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम अच्छे से उसे कर सकते हो। आयरलैंड में काफी अपॉर्चुनिटीज है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आसानी से ऑफर लेटर्स देती है जो वहां अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। वो डुओलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, जो एक और मेजर फैक्टर है। आयरलैंड की काफी यूनिवर्सिटीज इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एक्सेप्ट करती है और इसमें अच्छा स्कोर करना काफी आसान है। जब तुम अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी पा हो, आयरलैंड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो ये बताता है कि आयरलैंड तुम्हारे ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए कितना अच्छा डेस्टिनेशन है। अगर तुम दूसरी कंट्रीज के बारे में और जाना चाहते हो और कैसे तुम आसानी से अन्य कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, साथ ही उनके एप्लीकेशन प्रोसेस का ब्रेकडाउन भी, तो प्लीज नीचे कमेंट करो ताकि मैं अपना अगला वीडियो इस पर बना सकूं। आखिर में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम अपने मास्टर्स या स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो, इंश्योर करो कि तुम हर एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हो और अपने अवेलेबल ऑप्शंस का बेस्ट यूज करो। थैंक यू।